So hello all, this is Ankit and you are watching SAS Happy Learnings. Here we discuss various topics related to CAT and definitely this will help in your CAT preparation journey. So previously I discussed parajumbles, critical reasoning, para completion, and today I have brought a question on critical reasoning which is based on assumption. So in last video, I discussed like how should we solve the critical reasoning question, and most important is to find the subject, the conclusion, and premise. Everything else is related to this only. So in this question, which is based on assumption, we have to again find our subject, which is our hero, and again we have to find our conclusion. And here we'll know how to use the Y test to find the conclusion. Then we'll find our premise. Premise is a fact or a supporting statement which is given to support our conclusion. Now, how we'll check for the assumption? So assumption comes from relevant premise. The conclusion which came from relevant premise, that will help us to find our assumption, and also our assumption will indicate us, hint us towards the conclusion. Also another thing, assumption is an unstated statement which will not be present in the paragraph or the RC or wherever you'll have to solve for assumption. Assumption will not be stated. It will have to be thought of using the relevant premise, and also it will indicate towards the conclusion. So to solve the assumption question, we can eliminate some options using following methods. Like if some option is coming, like some option is came like coming from the additional premise, or if it is not leading to the conclusion, if it is coming from additional premise, okay. Also, if it is not leading to conclusion, maybe it is coming from relevant premise, but it is not leading to the conclusion. So we will eliminate that. If it is the premise is irrelevant, then also we'll eliminate it. So if we are left with one option and we want to cross check it, like अगर हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो अगर हम उसको वापस से चेक करना चाहते हैं, तो हम एक टेस्ट है नेगेशन टेस्ट, हम वो देखेंगे कि कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं. तो नेगेशन टेस्ट के बेस पे हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है assumption का, वो सही है कि नहीं है. तो अभी हम let's start our question. So one editorial has published some news like about some topic. So we'll see, we have to think from the perspective of the editorial. We cannot have our some other views. Editorial is saying something and we have to make like give our answer accordingly. So what editorial is written, that our city's public transportation agency, like our city's public transportation agency is facing a budget shortfall. So from here we can know that our subject, our hero is budget shortfall. So the answer should revolve around budget shortfall only. So next, the fastest growing part of the budget has been employee retirement benefits, which are exceptionally generous. So what the editorial is saying is that जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है सिटी का, वो उसमें बजट शॉर्टफॉल हो रहा है, बजट की कमी आ रही है. तो उसका उसने रीजन दिया है. क्यों रीजन दिया है कि जो उसका सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट है, बड़ा चंक है उसमें, वो एम्प्लॉयमेंट की रिटायरमेंट बेनिफिट्स है. मतलब जो एम्प्लॉय है वो रिटायर होने के बाद जो उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट वो कर रहा है उस चीज में. ओके. तो अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है उसमें बजट शॉर्टफॉल हो रहा है. अब वाई टेस्ट कैसे लगाएंगे, तो क्यों शॉर्टफॉल हो रहा है, तो उसका रीजन दिया है कि जो एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है और वो एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा है, बहुत जेनरस है. ओके. सो नेक्स्ट इज, unless the budget shortfall is resolved, transportation service will be cut and many transportation employees will lose their jobs. Okay, so इसका इफेक्ट क्या आ सकता है, जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि अगर ये बजट शॉर्टफॉल को जल्दी रिजॉल्व नहीं किया गया, इफ बजट शॉर्टफॉल इज नॉट रिजॉल्व्ड, ओके, देन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस विल कट एंड मेनी will be cut and transportation employees will lose their jobs. Okay. तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जो कंक्लूजन आ रहा है कि जो अगर बजट शॉर्टफॉल रिजॉल्व नहीं किया गया, तो क्या हो सकता है, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो सिटी का रुक जाएगा, एम्प्लॉयज जो है वो अपने जॉब खो देंगे. तो लाइक बजट शॉर्टफॉल क्या है, हमारा प्रोमाइस बन गया, रीजन बन गया कि क्यों जॉब कट हो सकती है या फिर सर्विसेज क्यों बंद हो सकती है. 10,
it would be in employees best interest for their union to accept cuts in their retirement benefits. So यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये चीजों को रोका जा सकता है कैसे, अगर जो यूनियन है, हर कंपनी में एक यूनियन होता है जो कि एम्प्लॉय के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो कंपनी है ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, ये प्रपोजल रखेगी यूनियन को कि लाइक वी वांट टू कट द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सो इफ दे विल एक्सेप्ट इट देन द बजट शॉर्टफॉल कैन बी रिजॉल्व। ओके, तो हमको इसमें assumption फाइंड करना है कि like what could be our assumption. Okay, so question is which of the following is an assumption of the editorial arguments requires. So उसने कहा कि बजट शॉर्टफॉल है, देन उसमें रीजन क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, देन अगर नहीं किया गया बजट शॉर्टफॉल रिजॉल्व तो सर्विसेज बंद पड़ सकती है, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, जॉब जा सकती है लोगों की, तो यूनियन को रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओके, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, the transportation employees union should not accept cuts in retirement benefits if doing so would not be in employees best interest. So this is a kind of suggestion. Okay, like यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है यूनियन को कि लाइक एक्सेप्ट मत करो। तो जो अजम्पशन है वो सजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अजम्पशन क्या है कि हमको कंक्लूजन की तरफ इंडिकेट करना चाहिए कि अगर बजट कट किया बजट, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कट किया बजट, तो हमारा शॉर्टफॉल कम हो जाएगा। तो इसमें तो कह रहा है कि लाइक शुड नॉट एक्सेप्ट कट्स इन रिटायर, तो ये हमारे कंक्लूजन की तरफ जा ही नहीं रहा है। सो दिस कैन नॉट बी आर assumption. B option is the only feasible way for the agency to resolve the budget shortfall would involve cutting transportation service and eliminating jobs. यही तो हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ही बंद करना होता और जॉब्स एलिमिनेट करना होता तो हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कटिंग ही क्यों करेंगे। लाइक हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमको बजट शॉर्टफॉल रिजॉल्व करना है ताकि जॉब ना जाए लोगों की और सर्विसेज बंद ना पड़े। सो दिस इज नॉट आवर assumption. Next is other things being equal. It is in the transportation employees' interest to have exceptionally generous retirement benefits. दिक्कत यही है कि भाई रिटायरमेंट की जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा है, तो ये तो सपोर्ट करेगा कि क्यों ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स को कट नहीं करना चाहिए। और हमको तो ये इस चीज में अजम्पशन में देना है, हमारा कंक्लूजन क्या है कि हमको बजट शॉर्टफॉल रिटायरमेंट बेनिफिट्स को कम करना है ताकि हमारा बजट शॉर्टफॉल रिजॉल्व हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बंद ना पड़े और एम्प्लॉयज की जॉब ना जाए। और यहाँ पे कह रहा है कि ये एम्प्लॉयज के हित में होगा कि बेनिफिट्स उनके बने रहे एक्सेप्शनल। तो दिस इज लाइक very much incompatible with our conclusion. So D option is cutting the retirement benefits would help resolve the agency's budget shortfall. तो अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूँ कि ऐसा करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो अजम्पशन मैंने क्या किया होगा कि हाँ भाई लाइक रिटायरमेंट बेनिफिट्स कट करेंगे तो बजट शॉर्टफॉल रिजॉल्व हो जाएगा। मेरा सब्जेक्ट ही वही है कि बजट शॉर्टफॉल हो रहा है तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, उसको रिजॉल्व ऐसे करेंगे कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स को कम करेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ किसी को कि 1 घंटे बाद मैं दिल्ली में होऊंगा, तो उसके लिए मुझे उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी लेना पड़ेगा ना जो मुझे 1 घंटे में। तो मैं अज्यूम क्या करूंगा कि जो सामने वाला पर्सन है वो उस टाइप का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेगा ताकि वो 1 घंटे में मेरे पास पहुंच सके दिल्ली। तो दैट्स व्हाई डी लुक्स लाइक अ गुड आंसर, लाइक स्टिल विल कीप इट असाइड एंड हम ई ऑप्शन चेक करेंगे। E option says the transportation employees union will not accept cuts in retirement benefits. If doing so, will not allow more transportation employees to keep their jobs. अब यहाँ पे तो सीधा सीधा जजमेंट दिया जा रहा है कि दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। हमको अजम्पशन, किसी चीज को हमने कहा तो हमने सोचा क्या उसके लिए, तो जब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो लाइक हम ये प्रपोजल देंगे क्यों, हम विल नॉट अज्यूम दिस ओनली। सो दिस इज काइंड ऑफ अ जजमेंट एंड जजमेंट कांट बी अ assumption. तो suggestion can't be an assumption, judgment can't be an assumption, incompatible which is not leading to the conclusion cannot be an assumption. Okay, अब हमने डी ऑप्शन हमारे पास बचा है, तो डी ऑप्शन में हम एक बार नेगेशन टेस्ट चेक करेंगे। cutting the retirement benefits would not help, cutting the retirement benefits would not help resolve the agency's budget shortfall. अरे अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कट करने से बजट शॉर्टफॉल रिजॉल्व ही नहीं होगा तो हम ये कहेंगे ही क्यों। तो इससे हमारा कंक्लूजन इनवैलिड हो जा रहा है दैट कि
जब हम अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स कट करेंगे तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो इससे हमारा कंक्लूजन इनवैलिड हो जा रहा है। तो नेगेशन टेस्ट यही कहता है कि अगर अजम्पशन को अगर आप नेगेट करते हो, नेगेट कैसे करेंगे, अगर कोई चीज हो रही है एक्स डायरेक्शन में तो उसको क्रॉस कर दो कि नहीं हो रही है एक्स डायरेक्शन में, और उससे अगर हमारा कंक्लूजन ही कोलैप्स हो जा रहा है, इनवैलिडेट हो जा रहा है, then that is our assumption. Okay, so this was a question on assumption based question on related to critical reasoning. So this was it. Hope you liked it. If you liked it, like, share, subscribe. Thank you. We'll meet in the next video.